Hello friends, today we will discuss fourth poem, that is A Thing of Beauty by John Keats. About John Keats, it is said he was last to born and first to die, as he died at very tender age at the age of 26. But before his death, he created so many works, and the present poem A Thing of Beauty has been taken from his poetry, that is Endymion, in which Endymion, a young shepherd, had a vision, had a dream of Cynthia, the moon goddess, and resolved to seek her out and try to search her out in ocean, on the earth, everywhere where he could go. Now start the poem. Actually, before you read the education, what pleasure does a beautiful thing give us? Our beautiful things worth treasuring. यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें क्या जॉय, क्या हैप्पीनेस, क्या खुशी हमें वो देती हैं. हाउ डू फील हैप्पी बाय लुकिंग एट सम ब्यूटीफुल थिंग्स. और दीज थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, कि क्या हमें ट्रेजर करके रखना चाहिए, क्या उन्हें हमें मेमोरी में रखना चाहिए या संजो करके उन्हें रख लेना चाहिए फॉर फ्यूचर यूज. तो लेट्स सी हाउ द पोएट इज written it. A thing of beauty is a joy forever. The thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bow quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. In this poem, poet ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो thing of beauty है, a thing of beauty is a joy forever. It always gives us joy. We feel happy, glad by remembering or by looking at good things, and its loveliness, the beauty of these beautiful things always go on increasing. हमेशा की जो ब्यूटी वो इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है. It will never pass into nothingness, and the value of beautiful things can never be zero. Nothingness में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इनकी वैल्यू कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होती है. But will keep increasing with the passage of time. टाइम के साथ साथ इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है, इनकी जो ब्यूटी वो भी इंक्रीज होती रहती है. A bower quiet for us, और ये हमारे लिए एक bower quiet for us. It is just like a bower. Bower means a shady place. I repeat, bower means a shady place under some tree or beneath some tree. किसी पेड़ की जो छायादार हिस्सा होता है उसे हम bower कहते हैं. Quiet for us, that is quiet for us. There is a peace over there. यहाँ पे शांति है. It is also a sleep. Think of it, can be anything. A sleep full of dreams. कोई भी sound sleep जिसमें आप dreams देखें, beautiful dreams देखें, and you feel glad, you feel happy. It's a thing of beauty for us. And health and quiet breathing. It can be anything, as I have said. Quiet breathing, if you are living peacefully, living in silence, without any trouble, without any problems, you are exercising or having good health, it is just like a thing of beauty. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. Therefore, that's why on every morrow means every day, every morning, or you may say tomorrow, यानी आने वाले हर एक दिन में हम क्या करते हैं, we are reading basically जो read होता है वो क्या है, it's a flower band in a circle. flower band होता है जिसका एक सर्कल बना होता है, that is used to put on head पे as a decorative, as a एक कोई भी आभूषण के रूप में इसको हम पुट ऑन कर सकते हैं. तो ये आपका होता है रीडिंग. तो ये रीडिंग की तरह, जैसे सर्कल का कोई पॉइंट स्टार्ट नहीं होता है, कोई एंडिंग नहीं होती है, इन द सेम वे जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो भी स्टार्ट विद द बर्थ ऑफ अ पर्सन एंड एंड्स विद द डेथ ऑफ ए पर्सन. तो हम सारी जिंदगी थ्रू आउट द लाइफ इन थिंग्स को हम रीडिंग करते रहते हैं, सर्कलिंग करते रहते हैं. इट्स अ फ्लोवरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, एंड इट्स अ फ्लोवरी बैंड लाइक अ वेव. फ्लोवरी बैंड है जो हमें बाइंड करता है, दैट इज अटैच, दैट कीप अस adhered, keep us joined or force us to live on the earth.
ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी है जो एक फ्लोर में काम करती है और हमें अर्थ पे जीवित रहने के लिए मोटिवेट एनकरेज करती रहती है. Spite of despondence of the inhuman earth, of noble natures, of the gloomy days. Despite despondence, when we are living, we are always face to face or encounter some spite, jealous feeling, despondence, sadness. We feel hopeless. हम निराश अनुभव करते हैं अपने आप को. And there is lack of inhuman earth. Inhuman earth. That means lacking of something. Human qualities. We are lacking even human qualities. Simple, ordinary human qualities are absent in the world, like sincerity, selflessness. जो स्वार्थ एक तो होता है selfishness, एक होता है selfless. जब हम कोई काम selfless करते हैं तो it is worth rewarding. तो इस पर जो क्वालिटीज हैं, ऑनेस्टी है, ये क्वालिटीज ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगी. इसकी एक इनह्यूमन डर्थ है, एक बहुत अधिक कमी आ चुकी है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट सच क्वालिटीज इन लाइफ. दीज आर द नोबल नेचर्स, नोबल ह्यूमन बीइंग्स जिनकी हमें कमी रहती है. वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ फाइंड दीज पीपल, अ ट्रू फ्रेंड इवन ऑफ द ग्लूमी डेज. तो हमारे यहाँ ग्लूमी डेज होते हैं, सैड डेज, when we feel hopeless, disappointed, we feel upset. तो हम निराश अनुभव करते हैं. ग्लूमी डेज हैं when we are face to face with misfortune, adversity. हम अपने adversity से और misfortune से, दुर्भाग्य से हम face to face रहते हैं. And we are suffering from many problems in our life. So these are the things of beauty that keep us living on the earth. और ये हमें of all the unhealthy and overdarkened ways made for searching, yes, in spite of all. यहाँ बात होती है overdarkened ways and unhealthy ways. What are the unhealthy ways? Unhealthy ways are selfishness, cunningness, working for the advantage or benefit. जो हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करते हैं. तो ये सब क्या है? Unhealthy ways हैं. ये overdarkened ways हैं that makes our soul or spirit polluted. So in spite of all, we always keep in search, or human being is always in search of finding things of beauty. Here the poet tells us about some shape of beauty. Some shape of beauty. It means there is some shape, some concrete shape of beauty is there. Not actually, but shape of beauty can be anything. It differs man to man. हर इंसान के लिए अलग हो सकती है. That moves away the pall. तो ये जो पाल बनता है, पाल किसका है? जो ओवरडार्कन वेज हमने यूज किए हैं, हमने बताया कि सेल्फिशनेस है, कनिंगनेस है, या हम अपने एडवांटेज के लिए काम करते हैं. तो इनसे क्या हमारी जो स्पिरिट है वो पॉल्यूट होती है और एक सैडनेस का, एक सोरो का, एक मिसफॉर्चून का एक पाल बन जाता है, कवरिंग बन जाती है. एक थिक कवरिंग को हम पाल बोलते हैं. तो सम शेप ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे दैट पाल. तो इस डिसअपॉइंटेंस का, होपलेसनेस का, जो निराशा का जो एक पाल बनता है, उसको रिमूव कर देती है थिंग्स ऑफ ब्यूटी. फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन, द मून, trees old and young, sprouting is shady bone. It can be anything. It may be moon, maybe sun, maybe a small tree, maybe some young tree, maybe some old tree, maybe sprouting. Just a sprouting, or just the two leaves of some seeds जो स्प्राउट करता है, अंकुरित होता है. और ये शेडी बून, शेड को भी हम बून से कंपेयर कर सकते हैं. शेड को हम बून कह सकते हैं बिकॉज इट गिव्स अस हैप्पीनेस अगेंस्ट द हॉट सीजन. जो गर्मी होती है, हीट वेव चलती है, तो शेड भी एक बून बन जाता है, एक वरदान बन जाता है. हमें उस हीट से ये रिलैक्स फील करवाता है. फॉर सिंपल शिप, यहाँ पे शिप को थोड़ा सिंबलाइज कर दिया गया है एज जीसस क्राइस्ट एंड इंडियन who were shepherd, both of them were shepherd. दोनों ही shepherd थे, गडरिये थे, and they were circled or surrounded by ship. तो ship वैसे भी innocence को symbolize करती है, और simple human being, selfless human being are just like ship. They also symbolize to innocence. innocence मासूमियत को शो करते हैं. तो अगर आपको मासूम innocent human being भी मिलता है, या whatever is innocent is a thing of beauty.
तो जो भी चीज इनोसेंस है, जिसके अंदर इनोसेंस है, चाहे वो चाइल्ड है या ग्रोन अप है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है. एंड सच आर डैफोडिल्स, ऐसी डैफोडिल्स जो फ्लावर्स हैं आपके, दीज आर आल्सो गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर आवर आईज. इट्स अ फीस्ट फॉर आईज. आंखों के लिए फीस्ट होते हैं फ्लावर्स. वी फील हैप्पी ऑन लुकिंग एट देम. With the green world they live in and the environment in which these flowers are blossoming, जहाँ ये फ्लावर ब्लॉसम हो रहे हैं, वो जो एनवायरमेंट है, ग्रीन एनवायरमेंट है, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. इट आल्सो फील मेक अस फील हैप्पी. एंड क्लियर rills, स्मॉल रिवर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स और स्मॉल रिवर्स, स्मॉल फ्लोइंग रिवर्स, बहती हुई नदियां, जो स्ट्रीम्स हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी से कम नहीं है. That for themselves a cooling covert make against the hot season. क्यों नहीं है थिंग ऑफ ब्यूटी से कम? क्योंकि वी हैव ऑलवेज ऑब्जर्व, हमने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि आइदर साइड ऑफ द रिवर और स्ट्रीम देयर आर सम बशेस, ग्रास और स्मॉल ट्रीज. तो छोटे जो ग्रुप बन जाते हैं ट्रीज के, ग्रास है या और यहाँ पे प्लांट उगाया है, स्मॉल प्लांट है या कोई स्मॉल ट्री है, ये कूलिंग कवर्ट बनाते हैं. कूलिंग कवर्ट क्या है? हाइडिंग प्लेस. फॉर विच? फॉर व्हाट? फॉर द स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट. एंड दीज आर द लाइफ सेवियर फॉर देम. ये जो कूलिंग कवर्ट है वो एक लाइफ सेवियर है इंसेक्ट के लिए. इनकी लाइफ लाइन एक तरह से अगेंस्ट द हॉट सीजन. जब हॉट सीजन स्टार्ट होता है तो दे सेव देयर लाइफ बाय हाइडिंग देमसेल्फ इन दिस कूलिंग कवर्ट. ये जो हाइडिंग प्लेस है, यहाँ छिप करके अपनी लाइफ को सेव करते हैं. यहाँ पे कूलिंग कवर्ट आप देखिए, कूलिंग कवर्ट में सी की रिपीटिशन है, फ्रीक्वेंसी है, सी 2 बार यूज किया गया है. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी आप यूज करेंगे, दैट इज एलिटरेशन. हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी वर्ड की रिपीटिशन होती है एक या दो बार सेम लेटर की रिपीटिशन होती है तो हम उसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, एलिटरेशन. आई होप यू आर गेटिंग. यस. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. और जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक है, जो ट्रीज हैं, जो बशेस हैं, दैट आर ग्रोइंग इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, वो भी क्या है? पास्चर्स हैं. जो पास्चर्स हैं आपके, मिडोज हैं, ग्रीन पास्चर्स हैं आपके, वो भी क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है. रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम. जहां पे फेयर मस्क रोज ब्लूम करते हैं और वो स्प्रिंकल करते हैं, तो ये जो एनवायरमेंट है जो कि इन फूलों से भरा पड़ा है, स्प्रिंकलिंग करते हैं उस एनवायरमेंट में, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी को ही सिंबलाइज करते हैं, शो करते हैं. एंड सच टू इज द ग्रेजर ऑफ द डोम्स. अभी आप ये देखिए कि ऐसा नहीं कि जो केवल गुड थिंग्स है वही थिंग्स ऑफ ब्यूटी है. इवन ग्रोथ एंड डिके, गो हैंड इन हैंड, दोनों चीज साथ साथ चलती है, ग्रोथ भी और डिके भी. तो पॉइंट इमेजिन थिंग्स ऑफ ब्यूटी इवन इन डिके, इन डेथ. मौत में भी थिंग ऑफ ब्यूटी को पॉइंट फील करता है और उसमें भी ग्रेजर, एक स्प्लेंडर, एक शान दिखाई गई है कि जो डूम्स है, जो डेथ है, वो भी शानदार होता है. नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर दोज हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ सम ग्रेट कॉज. किसी बड़े उद्देश्य के लिए, फॉर द सेक ऑफ कंट्री, लाइक वॉरियर्स, नाइट्स. पुराने नाइट्स होते थे, वॉरियर्स ही बोलते थे उनको, योद्धा होते थे जो अपने देश के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं. उनका जो डूम्स है, उनका जो फाइनल डे है, जो उनकी डेथ है, वो भी क्या है? स्प्लेंडर है, उसमें भी एक शान है. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, and all the lovely tales that we have heard or read about these people, these great people, those who have fought for the struggle of human being, humanity, जो मानवता के लिए लड़े हुए हैं, for the sake of freedom of the country लड़ते हैं, देश की स्वतंत्रता लड़ते हैं, देश की आजादी के लिए जो अपनी लाइफ को लीड करते हैं, अपने प्राणों को निछावर करते हैं. उनकी अगर जो भी स्टोरी आपने सुनी है, if we are in India, तो हम how can you forget भगत सिंह, सुभाष चंद्र, those who have sacrificed their life for the sake of country. तो ये जो लोग थे, इनके जो डूम्स था, वो भी एक शानदार दिन था और हमने उनके बारे में स्टोरी सुनी है या पढ़ी है. वी फील हैप्पी, उनसे भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, एंड वी फील एनर्जेटिक, और हम एनर्जेटिक फील करते हैं और लाइफ में हम आगे बढ़ जाते हैं. ये टेल्स भी खूबसूरत थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, खूबसूरत होती है अबाउट दीज mighty people, powerful people. mighty क्यों है? These are not really mighty with power, but their actions, their struggle,
and their sacrifice for the sake of some cause made them mighty powerful. तो इनका जो काम था, जो इनके एक्शंस हैं, वो उन्हें पावरफुल बनाते हैं. फिजिकल पावरफुल होना ही काफी नहीं है, आपके जो एक्शंस हैं, जो मेंटलिटी है, जो आपका थिंकिंग है, विजन है, वो आपको पावरफुल बनाता है. तो डैड भी माइटी हो सकते हैं. चाहे तो आप इसमें एक फिगर स्पीच निकाल सकते हैं, माइटी भी और डैड भी. हम इसमें ऑक्सीमोरॉन यूज कर सकते हैं. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? सेटिंग ऑफ टू डिफरेंट वर्ड एट अ सेम प्लेस. एक इस जगह पे हम दो डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स डाल देते हैं, जैसे माइटी, पावरफुल, डैड, ब्रीथ. तो उस केस में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन हो सकता है. अगर पूछा जाए तो कोई एमसीक्यू में डाल दिया जाए, ऑप्शंस नहीं है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस फिगर ऑफ स्पीच. ऑक्सीमोरॉन, an endless fountain of immortal ring. Now the things of beauty has been compared with a fountain of immortal ring. Fountain, कैसा fountain? Endless fountain. तो यहाँ पे एक exaggeration है, एक hyperbole यूज कर दिया गया है, अतिशयोक्ति होगी कि endless fountain. Fountain जो कोई endless है, never ending है, चलता ही रहता है. और वो किस चीज का? Immortal ring, that is nectar, exceller होता है, अमृत होता है. तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है? अमृत की तरह है, नेक्टर की तरह होती है, और एक एंडलेस फाउंटेन है उनका, जो निरंतर बहता रहता है. यहाँ पे एग्जैजरेशन या हाइपरबोली आप यूज कर सकते हैं. एंड these थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैव बीन प्रोवाइडेड टू ह्यूमन बीइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, pouring onto us from the heavens ring, and these things have been poured onto us. These gifts have been given. This is a bounty, bounty, gift of nature. ये प्रकृति का हमें गिफ्ट है, एक बाउंटी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिला है और हमारे तरफ पोर कर दिया गया है, उड़ेल दिया गया है फ्रॉम द वेरी एंड ऑफ वेरी एज ऑफ हेवन. So this is a short poem of John Keats, A Thing of Beauty, that has been taken from Endymion, the poetic romance. और यहाँ पे एक एलिगरिकल एलिमेंट यूज किया गया है. यहाँ पोइट अपने आप को शेफर्ड के प्लेस पे रखता है, जो कि माउंट लैटमस पे रहता है, और किस तरह से वो थिंग ऑफ ब्यूटी की सर्च में यहाँ से वहां, फ्रॉम अर्थ टू ओशियन, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशियन वो सर्च करता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डिस्कस सम अदर थिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.